Hello everyone, welcome back to today's class on rationalism. So, in this series, we will be discussing about rationalism, empiricism, positivism. What is the relation between the two? What was Wilhelm Wundt's approach? Was he a rationalist? Was he an empiricist? What is British empiricism? All these things will be discussing in detail. So now, what is rationalism? See, rationalism and empiricism, both of them debate over the source of knowledge, right? So according to them, source of knowledge is different. Like rationalism says that the source of knowledge is reasoning, whereas empiricism says that the source of knowledge is sensory experiences, right? So now let us see rationalism. What does it say? There are certain key points that you need to understand in order. That is, first is रीजनिंग या फिर रीजन जो होता है, दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू रैशनलिस्ट्स. They say that there are certain truths which can be known independent of the sensory experiences, right? For them, sensory experiences don't dominate. They say that sensory experiences कुछ भी हो, reasoning से we can know about the truths. एंड वो हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू द यूज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल डिडक्शन, इनेट आइडियाज. सो रैशनलिस्ट फोकस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, सिस्टमेटिक रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन एंड इनेट आइडियाज. इनेट मीन्स क्या होता है? इनेट मतलब देयर इज समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर इन आवर माइंड. ठीक है, तो इफ इट समथिंग इज ऑलरेडी देयर इन द माइंड, देन सेंसरी एक्सपीरियंसेस हम क्या लाएंगे? वो बोल रहे कि हमारे माइंड में ऑलरेडी, जब हम ऑलरेडी देर इज समथिंग विच इज़ ऑलरेडी देयर इन द माइंड. सेंसरी एक्सपीरियंसेस से हम नॉलेज गेन नहीं करते हैं. जो हमारे माइंड में ऑलरेडी है, दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, right? So they say that the human mind possesses inborn structure or principles that allow the individuals to understand the reality through reasoning, right? Now, who are the thinkers or who are the philosophers who are proposed the idea or who followed the idea of rationalism? They are René Descartes, Baruch Spinoza, and Gottfried Wilhelm Leibniz. Right? We have to learn the names of these three philosophers who are associated with rationalism. First is René Descartes. René Descartes, he is the famous one, right? Whenever we say of René Descartes, we understand the first thing that comes to our mind is this famous statement, cogito ergo sum, right? Which is I think, therefore I am. Right? And the second is Baruch Spinoza, and third is Wilhelm Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz. तो रैशनलिस्ट ने क्या किया? जो एम्पिरिस्ट बोल रहे हैं, एम्पिरिस्ट क्या बोलते हैं? एम्पिरिस्ट से दैट द सोर्स ऑफ नॉलेज इज सेंसरी एक्सपीरियंसेस. बट रैशनलिस्ट को ये लगता है दैट जो सेंसेस है हमारे, दे कैन समटाइम्स बी मिसलीडिंग, दे कैन समटाइम्स बी अनरिलायबल. देयरफॉर जो सेंसरी परसेप्शन से या सेंसरी हमारे एक्सपीरियंसेस से जो नॉलेज हम गेन करते हैं, वो हमेशा ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है. ठीक है, कभी कभार हमारे सेंसेस जो हैं वो हमें रॉन्ग गाइड कर सकते हैं. तो वो बोलते हैं रैशनलिस्ट कि नो, दैट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी. हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? हमारे खुद के लॉजिकल रीजनिंग पे ट्रस्ट करेंगे, हमारे लॉजिकल डिडक्शन पे. सी, इंडक्शन नहीं है, इट इज़ लॉजिकल डिडक्शन हियर विच रैशनलिस्ट प्रपोज. हम अपने लॉजिकल डिडक्शन, हम अपने रीजनिंग पे रीजनिंग के हिसाब से हम रियलिटी को देखेंगे, हम रीजनिंग के हिसाब से हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज या फिर नॉलेज हम गेन करेंगे, नॉट ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस. एंड सेकेंड थिंग, इनबॉर्न स्ट्रक्चर्स और इनेट स्ट्रक्चर्स जो हमारे माइंड में ऑलरेडी है, दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ नॉलेज. वो ये बोलते हैं इनेट मतलब क्या है? समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर इन अ माइंड. ठीक है, तो वो बोलते हैं दैट सर्टन नॉलेज इज ए प्रायरी. ए प्रायरी का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स प्रायर टू एक्सपीरियंस. ठीक है, so rationalists believe that जो certain knowledge, not all the knowledge, certain knowledge is a priori, means it exists prior to and independent of experience, right? कैसे? जैसे देखो मैथ्स और लॉजिकल ट्रुथ्स. ठीक है, ए प्रायरी नॉलेज के एग्जाम्पल रैशनलिस्ट ने क्या दिए? आपके मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ट्रुथ्स. ठीक है, अभी 2 + 2 = 4 मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स जस्ट 2 + 2 = 4, दे कैन बी नोन ओनली थ्रू रीजनिंग. ये आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस से नहीं आते, ये रीजनिंग से आते हैं. इट इज़ यूनिवर्सल, दे डू नॉट रिक्वायर सेंसरी ऑब्जर्वेशन टू बी वेरीफाइड. ठीक है, दे आर कंसिडर्ड यूनिवर्सली ट्रू थ्रू रैशनल अंडरस्टैंडिंग. सो इस मैथमेटिकल लॉजिक और लॉजिकल ट्रुथ से उन्होंने ये बोला कि देयर इज सर्टेन नॉलेज विच इज ए प्रायरी. सेंसरी परसेप्शंस हो ना हो, ये कभी नहीं चेंज होगा, राइट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसरी ऑब्जर्वेशन.
Next key idea in rationalism is the concept of innate ideas that I've already told you. Rationalists ये बोलते हैं that the mind is not a blank slate. आपको अगर याद होगा जॉन लॉक जो है उन्होंने टैब्यूला रासा बोला था. उन्होंने बोला था माइंड इज अ टैब्यूला रासा. ही इज एन एम्पिरिसिस्ट. उन्होंने बोला था माइंड इज अ टैब्यूला रासा मतलब माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट. हम जब पैदा होते हैं हमारा माइंड ब्लैंक होता है. बट रैशनलिस्ट दे अपोज दिस. ठीक है, उन्होंने बोला कि माइंड हमारा ब्लैंक स्लेट नहीं होता है, उसमें ऑलरेडी कुछ इनहेरेंट इनेट स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी होते हैं जो हमारे नॉलेज को गाइड करते हैं. द सेम कॉन्सेप्ट से हमारा डिराइव होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. जब देखो इन डिफरेंट कंट्रीज पीपल मतलब दे से दैट वी ऑलरेडी वी आर बॉर्न विद अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. ठीक है, हम लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में हो आ ई जब बच्चा पैदा होता है 2 साल का होता है आ ई वो बोलता है, उसको कोई सिखाया नहीं जाता है. द बैबलिंग साउंड एंड ऑल इट्स ऑलरेडी देयर. दे आर बॉर्न विद दैट. ये हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ही बोलता है. तो रैशनलिज्म इज अलॉन्ग द सेम लाइन्स ओनली. ठीक है, दे प्रपोज दैट माइंड इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट. इट कंटेन्स इनहेरेंट प्रिंसिपल्स दैट गाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेने डिकार्ट ने क्या कहा था, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, मैथमेटिकल ट्रूथ्स, दे एग्जिस्ट नेचुरली इन द ह्यूमन माइंड. 3 चीज़ों को याद रखना, सेंस ऑफ गॉड, सेंस ऑफ सेल्फ, मैथमेटिकल लॉजिकल ट्रूथ्स. रेने डिकार्ट ने बोला था कि ये हमारे अंदर नेचुरली होता है. His famous statement is what? Cogito ergo sum. I think, therefore I am. इसका मतलब है हमारा जो थिंकिंग का कैपेसिटी है, द सर्टेनिटी ऑफ वंस थिंकिंग कैन बी नोन प्योरली थ्रू रीजनिंग. ठीक है, दिस इज व्हाट ही मेंट. Next is rationalism. It played an early and important role in shaping the early scientific thinking by emphasizing on logical deduction and systematic reasoning. This I've already told you. ठीक है. Next is rationalists believe that knowledge could be developed by applying general principles and logical laws to derive specific conclusions. Right? तो ये क्या बोल रहे हैं, ये यूनिवर्सल लॉज पे फोकस करते हैं, ये जनरल प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं, ये लॉजिकल लॉज पे फोकस करता है रैशनलिज्म. राइट? तो फिलोसॉफी हो गया, मैथ्स हो गया, नेचुरल साइंसेज में जो डिस्कवरी होते हैं, ठीक है, ऑल दिस आर गाइडेड थ्रू रैशनलिस्ट अप्रोच. जिसमें हम रीजनिंग करते हैं, हम सिर्फ जो देखते हैं उस पर बिलीव नहीं करते, हम अपनी रीजनिंग पे बिलीव करते हैं. Next is, in psychology, rationalist ideas contributed to perspectives that emphasize internal mental structures, right? Later on, हाँ, एंड नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, रैशनलिस्ट से हमारे जो साइकोलॉजिकल अप्रोचेस इंस्पायर हुए हैं, वन इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि हमारे जो डिसफंक्शनल इरैशनल बिलीव्स एंड थॉट्स हैं हम उसको जाने एंड देन वी कैन चेंज इट. तो इसमें क्या होता है, ब्रेन इज इन्वॉल्व. सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, नेटिविस्ट साइकोलॉजी, ठीक है, टू लर्निंग लैंग्वेज, ये सब आर इंस्पायर्ड बाय रैशनलिस्ट अप्रोच. So the summary is that the rationalism, it is a philosophical view that knowledge is primarily derived from reason, innate mental structures rather than sensory experiences. Sensory experiences कौन सा थियरी प्रपोज करता है, एम्पिरिसिज्म. राइट? ए प्रायरी नॉलेज मतलब सर्टेन नॉलेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट एंड प्रायर टू आवर एक्सपीरियंस, प्रायर टू आवर सेंसरी एक्सपीरियंस. ए प्रायरी नॉलेज पे फोकस करता है, लॉजिकल डिडक्शन पे फोकस करता है, यूनिवर्सल लॉज पे फोकस करता है. ठीक है, एंड ब्रेन का रोल, माइंड को वो क्या सोचता है, इट बिलीव्स दैट आवर माइंड इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटिंग रियलिटी. राइट? Just let us summarize now. Reason is the main source of knowledge. Some ideas are innate, a priori. Mind has built-in innate inherent structures. Mathematics is the model of true knowledge, reasoning. Certain truths are universal, necessary, universal laws, universal principles. Major thinkers, René Descartes. Famous line, cogito ergo sum. I think, therefore I am. He is a dualist. That mind and body are separate. He believed in innate ideas. Baruch Spinoza. Reality can be understood through logical deduction. वाला किसने कहा था, स्पिनोजा ने बोला था, लॉजिकल डिडक्शन. गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज ने क्या बोला था, innate principles. Mind is innate principle, knowledge unfolds from within.
right? And rationalism has influenced nativism. Nativism is based on innate structures. Cognitive psychology, mind actively organizes experience. For example, language acquisition theories later drew on rationalist ideas. So this is all about rationalism that we covered in today's class. Next class we'll see what is empiricism. Thank you everyone.